اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے نام سے ابتدا جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو رازق ہے کل کائنات کا، جو مالک ہے ارض و سما کا، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور بے شک ہمارا یہ ایمان، یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ آپ کی میزبان سیدہ زینب پروگرام اسلام اور خواتین لے کر حاضر خدمت ہیں۔ نعمت افطار میں خصوصی سیگمنٹ جناب آپ دیکھ رہے ہیں، خواتین کے لیے ترتیب دیا گیا، خصوصی طور پر ہماری بہنوں کے لیے ترتیب دیا گیا سیگمنٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ذات مبارکہ، جن کی پوری حیات مبارکہ ہمارے لیے کامل ہے، کامل نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن بھی جب بریاد کرتے اور جب مخاطب کرتے یا آپ کا تذکرہ کرتے تو اس بات کی یقین دہانی انہیں ہوتی کہ آپ ایفائے عہد یعنی وعدے کو پورا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کی پاسداری فرمایا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم ہے کہ ایک سفیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ابو رافع جو غلام ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام لے کر تشریف لاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر آپ کی نظر پڑتی ہے تو آپ ان کے نورانی چہرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے اتنے متاثر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں کافروں کے پاس دوبارہ لوٹ کر جانا نہیں چاہتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ عہد ہے کہ ہم قاصدوں کو اپنے پاس نہیں روکتے ہیں، آپ جائیے، اور اگر آپ کی یہ کیفیت اس وقت تک بھی اسی طرح سے قائم رہے تو آپ ضرور لوٹ کر آئیے گا۔ اور پھر وہ جاتے ہیں اور اسلام قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ ایفائے عہد ہے، یہ وعدے کی پاسداری ہے۔ آج اسی حوالے سے یعنی ایفائے عہد کے فضائل پر انشاءاللہ تعالی کلام کریں گے ہمارے ساتھ شریک گفتگو وہ مہمان شخصیت جو یقیناً استاد کا درجہ رکھتی ہیں، ہمارے اس بزم میں بہت مرتبہ شریک گفتگو ہیں، آپ کی جانی پہچانی محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوسری ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہماری دوسری مہمان شخصیت ہیں، یقیناً آپ انہیں جانتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، میزبان بھی ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ سحر اعظم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور سحر کلام سے ابتدا کرتے ہیں۔ نوازتا ہے جو سب کو وہ دل نواز ہے تو، نیاز مند ہے سب اور بے نیاز ہے تو، زمانے بھر کی بناتا ہے سب کے بگڑے کا، کریم سارے زمانے کا کارساز ہے تو، اس شانی کرم کا کیا کہنا، اس شانی کرم کا کیا کہنا، در پہ جو سوالی آتی ہیں ایک تیری کریمی کا صدقہ، ایک تیری کریمی کا صدقہ، وہ من کی مرادیں پاتی ہیں اس شانی کرم کا، شانی کرم کا کیا کہنا، اس شانی کرم کا کیا کہنا۔ خالی نہ رہی رحمت سے تیری، دکھ درد کے ماروں کی جھولی، خالی نہ رہی رحمت سے تیری، دکھ درد کے ماروں کی جھولی، یہ تیرا کرم ہے در پہ تیرے
करम का क्या कहना, इस शानी करम का क्या कहना, इस शानी करम का क्या कहना। दर पे जो सवाली आते हैं, इस शानी करम का क्या कहना, इस शानी करम का क्या कहना। माशाल्लाह माशाल्लाह, आबाद रहिए आबाद रहिए। इम्तियाज़ आपा, इफ़ाए अहद, इसकी अहमियत, इसकी फ़जीलत, उस पर कुछ रोशनी डालिएगा। शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वल-मूफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा अहदू। सूरह बकरा की ये आयत मुबारक है और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि वो अपने वादों को पूरा करते हैं जब भी वो वादा करते हैं। और इस आयत मुबारक की हम आगे देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन लोगों की खुसूसियात बयान करते हुए बताया कि ये सच्चे भी हैं और तकवा वाले भी हैं। अब आप गौर करें कि सच्चों और तकवा वालों की निशानी क्या है कि वो जब भी वादा करते हैं तो बात को पूरा करते हैं। अब यहाँ सच्चों की बात आई तो उलमा लिखते हैं कि जब तुम जुबान से सच बोलते हो तो वो सिद्क कहलाता है, और यही सिद्क जब तुम्हारे अमल में आता है तो इफ़ाए अहद कहलाता है। सुभान अल्लाह भाई, जुबान से कहना वो सिद्क है, और अमल तुम्हारा कि तुमने वादा किया और तुमने अमलन उस वादे को पूरा करके दिखाया, ये इफ़ाए अहद है जिसका जिक्र हो रहा है और जो तकवा वालों की निशानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बारे में फरमा रहे हैं कि इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, कि अहले ईमान जो जो हमने वादे किए हैं हम वादे पूरे करने वाले, हम वादा खिलाफी नहीं करते। और एक जगह हुक्म दिया बाकायदा अहले ईमान को कि अपने वादों को पूरा करो, इन्नल्लाह अहद काना मसऊला, तुमसे वादों के बारे में पूछा जाएगा। अब इसकी तशरीह में लिखते हैं मुफस्सिरीन कि आप देखें तो हम मामलाते ज़िंदगी में वादे कर रहे होते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये मेरा मामला तो इस बंदे के साथ है जो ज़मीनी मामलात हैं, ये कौन सी नमाज है, ये कौन सा रोज़ा है। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारक में बताया कि मामला तो वो तुम्हारा दुनियावी था, तिजारत का था, मुआहिदों का था, या जो भी था, मगर याद रखो कि वो उनके बारे में पूछा जाएगा। जो जो तुमने वादे किए, पूछने वाला कौन होगा? वो हिसाब लेने वाला वो खुदाए रब्बुल इज़्ज़त जिसने तुम्हें हुक्म दिया कि अपने वादों को पूरा करो। और जैसे आपने भी कहा, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात मुबारक आपने ज़बान मुबारक से जो कहा उसे पूरा किया। और आपके बारे में आता है बैसत से पहले जब आप तिजारत किया करते थे तो एक ताजिर से आपने फ़कत इतना कहा कि मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। वो किसी काम से चला गया और वो भूल गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 दिन तक वहाँ रुके रहे। 3 दिन बाद उसको याद आया और वो वापस आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी जगह मौजूद पाया। तो ये आपकी ज़बान और आपके अमल की सच्चाई थी जो आपकी पूरी हयात मुबारक में नज़र आती है, और आप उसकी ताकीद भी फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। चंद मिसालें तो आपने इम्तियाज़ आपा फरमाई यहाँ पर, लेकिन मैं चाहूँगी कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसके फ़वाइद इरशाद फरमाइएगा। देखिए, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान के लिए पसंद किया इस्लाम दीन को, तो उसमें बतौर ख़ास जो बात समझने की है कि जिस चीज़ का ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से है, इज्तिमाइयत के फ़ायदों से है, उसमें कोताही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बर्दाश्त नहीं करते। और जब आप गफलत और कोताही नहीं करते, उन चीज़ों को पूरा करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश होता है। हम इसे इस अंदाज से भी देखते हैं कि एक फ़र्द जो अपनी कौल का और अमल का सच्चा हो जाता है, वादों को पूरा करने वाला होता है, तो उसको शख्सी और रूहानी फ़वाइद हासिल होते हैं। उसके बातिनन उसके अंदर एक ऐसा नूर आ जाता है जो उसे नूर बसीरत अता कर देता है। फिर आप देखें तो उखरवी फ़ायदे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वादा फरमा रहे हैं कि जो अपने वादों को पूरा करते हैं उनके लिए अजर अजीम है। तो अजर अजीम का वादा उस ज़िंदगी के लिए है जो दायमी और आखिरी है। फिर आप देखें तो इज्तिमाइयत में, मुआशरे में जो शख्स अपनी कमिटमेंट्स का सच्चा और खरा है ना, हर जगह उसकी तारीफ होगी, दिलों में उसके लिए इज्जत होगी। वो बंदा, वो शख्स दुनिया में मकबूल होगा। जो भी उसकी बात करेगा इज्जत और एहतराम से करेगा कि ये शख्स अपनी जुबान का भी सच्चा है, कौलो करार में भी सच्चा है, अपने आमाल में भी सच्चा है, अपने वादों में भी सच्चा है, मुआहिदों में भी सच्चा है, जो बात करता है खरी करता है। तो दुनिया में भी इज्जत और मर्तबा पाएगा और आखिरत में भी उसे इज्जत और मर्तबा मिलेगा। फ़वाइद की बात की, नुकसानात की बात कर लेते हैं। कुछ वईदें भी सुनाई गई हैं, फरमाइएगा।
ज़ैनब अल्लाह के हबीब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला दीन लिमन ला अहद लहू, जिसमें वादा नहीं उसका दीन ही नहीं। अल्लाह आप गौर करें, जिसमें वादा नहीं उसका दीन ही नहीं है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस मुबारक है कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। बात करता है तो झूठ बोलता है, अमानत रख दो तो खयानत करता है, वादा कर दो तो वादा पूरा नहीं करता। तो आप गौर करें, मुनाफिक कौन है? जो ईमान में कामिल नहीं है उसे मुनाफिक कहते हैं ना। और उसकी ये तीनों निशानियां, तीनों इफ़ायत से मुतालिक है कि अमानत भी उसके पास रख दी तो वो मुकर गया, वो पूरा नहीं करता, बात भी करता है तो झूठ बोलता है, तो वादा तो कर लेता है, कमिटमेंट में कभी भी खरा नहीं रहता, उसको पूरा नहीं कर रहा होता। तो आप गौर करें, दीन ना होने की भी अलामत ये बताएगी, मुनाफिक की भी अलामत ये बताएगी। इसी तरह कोई शख्स शादी करता है और आप देखें कि निकाह में हक महर शर्त है बुनियादी तौर पर, वो हक महर रख देते हैं। और हमारे भी कई लोग ये इस तरह की गलती और गुनाह कर रहे होते हैं कि वो ज़हन में सोच लेते हैं कि चलें लिखा जाए, 10 लाख लिखा जाए, 20 लाख लिखा जाए, कौन सा हमने देना है। तो देने की नीयत ही नहीं होती। तो जब देने की नीयत ही नहीं होती उस वादे की जो आप निकाह जैसे मुआहदे में कर रहे होते हैं, तो ऐसा शख्स अल्लाह की बारगाह में जानी शुमार होगा। अल्लाहु अकबर। तो आप गौर करें किस कदर नुकसानात हैं कि जब आप वादों को पूरा नहीं करते, आप में मुनाफकत आ जाती है, आप दीन में ईमान में कामिल नहीं रहते, अल्लाह की बारगाह से आप दूर हो जाते हैं, रहमत से दूर हो जाते हैं। सही। इम्तियाज़ आपा, जैसे ये जो आपने निकाह की बात की, ये भी एक माशरती और पूरा इज्तिमाई मसला है। मैं चाहूँगी कि इसके फ़वाइद के हवाले से जो वादे की पासदारी भी लोग करते हैं, ख़िलाफ़ वर्जी भी लोग कर जाते हैं, माशरती सतह पर इसके क्या असरात होते हैं, फरमाइएगा। ज़ैनब देखें, हम अपने घरों में देखें तो वालिदैन हैं, वो बच्चों से बाज़ औक़ात मजाक में वादा कर लेते हैं, फिर उसे पूरा नहीं करते और उसका ख्याल भी नहीं रखते कि हमने बच्चे से ये वादा किया था, हमने उसकी बच्ची की तरबियत में गोया ये चीज़ रख दी कि बात करनी और मुकर जाना। फिर हम तवक्को रखते हैं कि वो बच्चे हमारे नेक क्यों नहीं है, साले क्यों नहीं है। तो हमें पहले अपना खुद एहतसाब करना है। इसी तरह माशरती मामलात में हम बाज़ों का दोस्तों से या अपने अहल अयाल से या अपने वालिदैन से कोई बात करते हैं और फिर वादों को पूरा नहीं करते। मोमिन की बात भी पुख्ता होनी चाहिए। ये बात नहीं है कि आपने कोई कसम खाकर बात करनी है तो वही वादा बनना है। नहीं, आपकी जुबान से जो बात निकल रही है कि मैं ये काम करूंगा, ये मैं ऐसा करूंगा, तो ये आपका वादा होना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि आपने जुबान से बात की है, अब आपने इसको पूरा करना है हर सूरत में, और उस पूरा करने के लिए तगोदो करनी है, कोशिश करनी है। फिर आप देखिए तो हमारे लेन देन के मामलात हैं, तिजारत के मामलात हैं, आप कभी कर्ज लेते हैं, कभी कर्ज देते हैं। याद रखें कि जो आप मियाद मुकर्रर करते हैं, आपने उस मियाद पर उसे लाजमी उसका कर्ज अदा करना है, कोताही नहीं करनी। ये छोटे छोटे मामलात हैं जो बताते हैं कि आप किस कदर अल्लाह के फर्माबरदार बंदे हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि इज्तमाइयत और हुकूकुल इबाद में कोताही बर्दाश्त नहीं है, तो हम मुआशरती मामलात में इस तरह की लापरवाहियां हमें नहीं करनी, ताकि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को दुरुस्त कर सकें। एक बंदा मोमिन होता है और घर का माहौल दुरुस्त हो जाता है, बाहर का माहौल दुरुस्त होता चला जाता है, अगर वो वाकई हक पर रहे तो। बेशक बेशक। यानी इम्तियाज़ आपा, जैसे कि माएँ भी अक्सर बच्चों को कह देती हैं, क्योंकि ख़वातीन देख रही हैं, तो हम यही कहते हैं कि भाई आप ये काम करेंगे तो हम चीज़ देंगे। कितनी बारीकी हमारे दीन में है कि आप इस लेवल पर भी वादा खिलाफ़ी ना करें। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई, बहुत जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। सहर आज़म हमारे साथ तशरीफ़ फरमाती। सहर, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। बस ये ध्यान रखिए कि फरमाया कि तुम वो बात क्यों करते हो जिसे पूरा ना कर सको, तो वो बात ही ना की जाए जिसे हम पूरा ना कर सकें, जिसके हम अहल ना हो, जिसकी हमारे अंदर अहलियत ना हो। परवरदिगार आलम हमें वादा खिलाफ़ी से बचाए, सच्चाई पर मबनी ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसके साथ ही अपनी मेज़बान सैयदा ज़ैनब को दीजिएगा इजाज़त। इख्तिताम करेंगे इंशाअल्लाह ताला सहर आज़म के पढ़े हुए कलाम से। बिस्मिल्लाह। मुझ पे भी चश्मे करम ए मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्मे करम, मुझ पे भी चश्मे करम ए मेरे आका करना। हक तो मेरा भी है रहमत का तक
تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم. کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے، کوئی فاروق سے اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، کیا چپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے، دل کی دنیا، دل کی دنیا، دل کی دنیا، دل کی دنیا کو نظر سے تہو بالا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم. اور مجھ پہ محشر میں نصیروں کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیروں کی نظر پڑ ہی گئی. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا. اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان،